We have two type of molecular orbital. One is bonding molecular orbital, another is anti-bonding molecular orbital. Okay. So if two type of bond molecular orbital, one is bonding anti-bonding. So due to attractive force of force dominate, so there will be what bonding molecular orbital. The repulsive force dominate, that then that type of orbital will be anti-bonding molecular orbital. And we studied that the difference between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital are in bonding molecular orbital the electron density is more than sum of atomic orbitals, sum of two atomic orbitals, combining atomic orbitals. In antibonding electron density is less. Okay. In bonding molecular orbital, the energy of molecular orbital will be less than the sum of energies of two atomic orbital. But in antibonding molecular orbital, the energies of antibonding molecular orbital is greater than sum of the energies of antibonding molecular orbital, sum of atomic orbitals. Okay. In bonding molecular orbital gives you stability of molecule. Antibonding molecular orbitals gives you instability of molecule. Okay. So how bonding and antibonding molecular orbitals are formed, that we have discussed. If S plus S, if both are plus, attraction will be there. So if attraction will be there, then they form bonding molecular orbital. Okay, is that clear? Now suppose you are taking, suppose you are taking S and P. Okay, S and P. So S and P overlap. S is say plus and P is approaching towards S and the plus is coming nearer to S. So plus plus attraction. So plus plus if they merge together, this is spherical shape, this is dumbbell shape. This is dumbbell shape and this is spherical shape. If they merge together, then this will be distorted, just like elliptical this portion. And this minus portion will become smaller lobe. And the plus portion will merge with this sphere, gives a big lobe. This is a bigger lobe. Okay. This is a bigger lobe. So spherical and dumbbell will merge. So after merging, you will get a bonding molecular orbital due to sp. Okay, clear? So electron density in bonding molecular orbital will increase. The electron density will be more. Okay, right. Yes, sir. Over. But similarly, suppose there will be destructive interference. This is due to constructive interference of electron wave and attraction force dominate, and destructive interference of electron wave. Suppose this is S, this is P. तो S का प्लस है, P का माइनस अप्रोच कर रहा है. तो S का प्लस P का माइनस अप्रोच करेगा तो क्या अट्रैक्शन नहीं होगा, प्लस माइनस रिपल्सन होता है. रिपल्सन होने से स्फीयर जो है वो डिस्टर्टेड स्पेरिकल हो जाएगा, ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, डिस्टर्टेड स्पेरिकल. ओके. तो ये जो डंबल है, जो पोर्शन इसके और अप्रोच कर रहा है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, और ये बड़ा हो जाएगा, दूर चला जाएगा. होता है कि नहीं? तो ये रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, तो देयर विल बी नोडल प्लेन इन बिटवीन, नोडल प्लेन आ जाएगा कि नहीं. सपोज दो
स्टूडेंट्स से क्लास में उनका बीच में झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गया, ठीक है, एक दूसरे को दुश्मन मान रहे। तो टीचर ने क्या किया, उनको बोले तुम फर्स्ट बेंच पे बैठो दोनों ही। तो दोनों ही क्या करेंगे, फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, क्योंकि टीचर का ऑर्डर है, लेकिन एक दूसरे का फेस नहीं देखेंगे। तो ये जो है जैसे शेप था पहले से, जो पहले अकेले में जो उसका शेप था और उसका फेशियल एक्सप्रेशन था, उसके साथ बैठने से उसका चेंज हो जाएगा और उसका जो बॉडी है सर उससे दूर चला सर जाएगा। ओके सर यस। सर ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन है? Yes, अननोन sir. लगता है We are सर। using that name. हाँ, द नासा। कैसे आ गया, तो कोई तो हाउ ही गॉट कनेक्टेड टू दिस, हु इज दैट स्टूडेंट? सर कोई हम लोग का बैच के स्टूडेंट है जो बदमाशी करके ये सब कर रहे हैं शायद। नाम चेंज कर दिया। सर आप एक बार चैट खोल के देखिए। क्योंकि मैं नाम देखता हूँ, नाम में भी एक तो नाम है शायद, एक बड़ा सा नाम, वो कहाँ गया, कट हो गया फिर? हाँ, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन गेस्ट, वो कैसे एंट्री कर दिया? गेस्ट कौन है भाई? नासा से आया कौन है? एलियन से क्या? पता नहीं, कोई भी कुछ नहीं। तो क्या है, उसको रिमूव कर दे क्या? इज ही इन आवर क्लास? तो ये So ऑप्शन, how are we supposed to know? So हाँ, he's using the Fiji account, so I guess let him go. so should I put him waiting room or remove? Who is there? नासा नाम पे कौन आया है? रैम, सर ये कोई क्लास डिस्टर्ब करना है सर, रिमूव भी कर दीजिए। उसको मैसेज देखिए, एक बार खोलिए चैट बॉक्स। हाँ सर एक सर बार अभी chat चैट box बॉक्स खोलिए। देखिए। चैट बॉक्स में क्या लिखा है? We don't use other name other than your original name. How to leave? Oh, ये सर बोला। एकदम लास्ट वाला देखिए। Don't write objectionable things. Who is alien here? यार ही तो इजाजत। सर टाइम वेस्ट हो रहा है, क्लास कंटिन्यू करिए ना। हाँ, हाँ सर आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। तो स्टूडेंट को क्या करे? तो उसको निकाल दीजिए, चैट में क्या बदतमीजी कर रहा हाँ है। सर आप किक हिम आउट सर। कर दी। उसको वेटिंग रूम में रख देते हैं। हाँ, कौन गाना बजा रहा? वही है सर। चलो वही बजेगा। वही बता रहा है। आप उसको निकाल दीजिए। अरे हाँ मिस्टर एलियन, सर कोई गाना। हाँ, वो दिख नहीं रहा। एक मिनट।
जा चला गया लगता है, दिख नहीं रहा, हाँ सर। उसका नाम नहीं दिख रहा। नहीं, नाम नहीं दिख रहा है, चला गया इसका। रूम लॉक कर देते हैं, ठीक है? कर दें क्या? हाँ सर कर दीजिए। नहीं सर, बीच में नेटवर्क डिसकंटिन्यूटी अगर होता कोई है फिर डिस्कनेक्ट हो गया तो ओ, हाँ तो तब प्रॉब्लम हो सकता है सर। तो लेट्स स्टार्ट। तो sp सिग्मा बॉन्ड जो हो रहा है, तो उसका सिग्मा बॉन्ड में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे होगा? एस और पी मिक्स हो गया, जहाँ पे मिक्स हो रहा है वहाँ पे ऐसे एलिप्टिकल शेप आ जाएगा, और ये जो दूसरा लोग में माइनस है वो छोटा हो जाएगा। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गया sp का। और अगर एंटी बॉन्डिंग में मिक्स हो रहा है प्लस माइनस, दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, दो दुश्मन अगर एक बेंच में बैठेंगे तो एक दूसरे का फेस नहीं देखेंगे, ये इस तरफ देखेगा, वो उस तरफ देखेगा, दोनों के बीच में गैप रहेगा, दोनों का बेंच के बीच में बहुत सारा गैप रहेगा, तो उसमें नोड्स आ जाएगा। ओके, और जो ये गैप्स रहेगा उसमें इधर वो लोग बैग रख देंगे या कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तो लोग ये इस राइट एंड में एंडिंग में बैठेगा, लेफ्ट एंड एंडिंग में बैठेगा, ऐसे करके बैठेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का ये है। ओके, तो अभी पीपी ओवरलैपिंग देखते हैं। पीपी ओवरलैपिंग में अगर पी और पी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, तो प्लस प्लस आ रहा है एक दूसरे के पास, तो अट्रैक्शन होगा। माइनस माइनस आ रहा है, माइनस तो अवे है, तो प्लस प्लस अट्रैक्शन होके प्लस प्लस मिलके तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन जितना था उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये भी पोर्शन छोटा हो जाएगा, तो ये ऐसे आ गया। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन पीपी, तो इसको बोलेंगे सिग्मा पीपी। तो सिग्मा पीपी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में। मतलब दो दोस्त अगर फास्ट बेंच में बैठेंगे, फास्ट एक ही बेंच में बैठेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के बैठेंगे, एक दूसरे को अगर क्लोज फ्रेंड है तो एक दूसरे के साथ नज़दीक में बैठेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ओके, और जो बाहर है तो ये बेंच का साइड खाली रहेगा, साइड में कम हो जाएगा, तो ये जो लोब है माइनस कम हो गया, छोटा हो गया, इस साइड से माइनस था जितना इतना कम हो गया, इस साइड से जो माइनस है यहाँ पे कम हो गया, ऐसे करना, तो ऐसे करके आएगा नोडल। तो ये आ गया। अगर दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है तो प्लस अगर माइनस के पास आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन होता है, तो प्लस माइनस रिपल्सन होने से पास आएगा, तो ये दोनों के बीच में नोड आ जाएगा, ठीक है? इसमें दोनों के बीच में एक्स्ट्रा नोड नहीं आएगा, जो पहले से नोड था, पहले से ये एक नोड था, ओके, कोई नोड यहाँ पे है, तो एक्स्ट्रा नोड कुछ नहीं आ रहा, ये पहले से नोड था और ये भी नोड है, ओके, तो इसमें भी एक्स्ट्रा नोड कुछ नहीं आ रहा, ये नो न्यू नोड इज फॉर्म इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, नोड बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस का अट्रैक्शन नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इस तरफ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन होने से उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। ओके, इसमें न्यू नोड्स विल बी फॉर्म, तो पहले से ये दो नोड था, अब वो नोड्स है लेकिन एक नया नोड बन जाएगा उनके बीच में। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड्स विल बी फॉर्म, ओके, क्लियर? नेक्स्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग देखते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग पी पी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, तो जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में
प्लस प्लस अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन माइनस माइनस अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन के वजह से क्या होगा, অ্যাট্রাকশন হচ্ছে কিভাবে? প্লাস 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 মডেল প্লাস ছি 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 আমার ছেলের জন্যই পড়ে না যে ফুল ফল পাতা দিয়ে বাচ্চাদের বিয়ে কি দিয়েছে এগুলো আঁকা আঁকি দিয়েছে টোকা দিয়ে দেয়নি। कौन है वो, म्यूट कर दो तुम लोग। देखो पी सबसेल डम्बल सबसेल होता है, तो पी सबसेल जब डम्बल है तो उसमें प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और इनके बीच में रिपल्सन होगा, इनके माइनस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो प्लस प्लस के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये जब अप्रोच कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ जाएगा। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है उसका ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये भी न्यूक्लियस, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा माइनस माइनस के बीच में अट्रैक्शन की वजह से। तो माइनस माइनस के बीच में अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, तो इसके बीच में नोडल प्लेन जो पहले से था, ये एग्जिस्टिंग नोडल प्लेन कंटिन्यू करेगा। नो न्यू नोड्स विल बी फॉर्म इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो पाई में क्या होगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई पी पी, तो पाई पी पी में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, नो न्यू नोड्स विल बी फॉर्म। ओके, तो ये नोडल प्लेन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे दिखाना है, ये ऊपर का जो लोब है मर्ज हो जाएगा, ये प्लस प्लस, नीचे का लोब जो है मर्ज हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, तो ऐसे आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। ठीक है, क्लियर है? तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, पाई 2p एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे आएगा? सर ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉट न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ठीक है, अब एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, अगर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस पास में आ गया, तो प्लस माइनस माइनस प्लस जब पास में आ गया तो क्या हो गया, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। जब जितना नज़दीक आएगा उतना रिपल्सन होता रहेगा, फाइनली क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर देखेंगे ऐसे करके। ठीक है, दो दुश्मन अगर पास में आएंगे उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, उनके बीच में रिपल्सन होगा, उनके बीच में रिपल्सन होने से क्या होगा, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहेंगे, वो उस तरफ देखता रहेगा, ये इस तरफ देखता रहेगा, ऐसे करके रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इनके बीच में एक न्यू नोड बन जाएगा, पहले से जो नोड था वो नोड एजिटिस रहेगा, एक न्यू नोड उनके बीच में बन जाएगा, ये न्यू नोड सर फॉर्म। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p पाई 2p स्टार। एंटी बॉन्डिंग में हम लोग स्टार देते हैं, बॉन्डिंग में स्टार नहीं देते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है यस सर। यस सर। अब डीपी मिक्सिंग हो रहा है, तो डीपी मिक्सिंग में याद रखो नॉन एक्सियल डी ही मिक्सिंग होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, एक्सियल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, नॉन एक्सियल ही पाई बॉन्ड बना सकता है। तो डीपी ओवरलैपिंग में देखो, डीपी ओवरलैपिंग ये इससे छोटा क्यों नहीं है, तो डी में ये माइनस है, ये हमारा माइनस है, ये भी माइनस है। ओके, और ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये अगर ये मान लो डी एक्स वाई ले रहे, तो एक्स वाई प्लेन में आएगा डी एक्स वाई,
DXY और DPY या PX, DXY अगर लेंगे तो DXY इस तरफ आएगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ऐसे मिक्सिंग होगा। तो ऐसे मिक्सिंग होगा तो ये जो मिक्स हो रहा है तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड बनाएंगे ऐसे ऐसे। और ये जो दो लोग है वो छोटा छोटा लोग हो जाएगा, ऐसे करके रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। और ये प्लस 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 होगा, माइनस 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 होगा, तो ऐसे करके आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन ये जो है नॉन एक्सियल डी ही मिक्स होगा, नॉन एक्सियल डी ही मिक्स होगा, जो डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स, डी एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स ही मिक्स होगा, एक्सियल मिक्स नहीं होगा। एक्सियल नहीं बनाएगा पाई बॉन्ड, डीपी बॉन्ड नहीं बनाएगा, पाई डीपी बॉन्ड एक्सियल जो है वो नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर? पाई डीपी नहीं बॉन्ड बनाएगा। ओके, राइट। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे बन रहा है? अब डीपी डी ले लिए, पी ले लिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है प्लस है, तो ओवरलैपिंग होगा। तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, माइनस प्लस का अट्रैक्शन होता है, नहीं होता है, रिपल्सन होता है। रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, रिपल्सन होगा तो कैसे उसका डायग्राम होगा? तो ये जो लोब पी के पास आ रहा है छोटा हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, और जो पी है वो टिल्ट हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा ऐसे करके, वो बेंड होके ऐसे रहेगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन हो रहा है, उनके बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। ओके, क्लियर? उनके बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। आ गया नोडल यस प्लेन? सर। नोडल प्लेन आ गया। अब डी डी ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? डी डी में भी ये नॉन एक्सियल लेना है, नॉन एक्सियल, एक्सियल में नहीं होगा। तो नॉन एक्सियल में ये डी ले लिए, ये डी ले लिए, तो डी डी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, ये मिक्स हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये जो माइनस ये प्लस है तो ये माइनस छोटा है, प्लस प्लस, तो ये माइनस छोटा है, ये प्लस ऐसा है, ठीक है। तो क्योंकि जो ओवरलैपिंग होगा ये साइड वाला छोटा हो जाएगा और ये मिडिल वाला मर्ज होके बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्डिंग का, पाई डी टी बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? एंटी बॉन्डिंग में ये जब मिक्स होगा, एंटी बॉन्डिंग का मिक्सिंग का स्टार्टिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये मर्ज हो रहा है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो मर्जिंग हो रहा है। प्लस माइनस का अट्रैक्शन नहीं होगा, माइनस प्लस का अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये जब पास आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ये दोनों छोटा हो जाएंगे, और जो साइड वाला लोब बड़ा हो जाएगा क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसका सेम रहेगा ना। तो यहाँ से रिपेल होगा तो इधर आ जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये जो नॉर्मल है उससे बड़ा हो जाएगा साइड में, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में एक नोडल प्लेन क्रिएट हो जाएगा, न्यू नोड्स आर फॉर्म्ड, राइट। ये इसका डायग्राम है पाइप। तो ये ऑर्बिटल का क्या होता है? इधर इन दोनों का अट्रैक्शन होता है या इन दोनों का रिपल्सन होता है। अगर दोनों का अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस अट्रैक्शन नहीं होगा, प्लस प्लस अट्रैक्शन होगा, ओके। तो बोथ आर इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो नोड्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से पढ़ लो। अब एक नया टाइप का बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है?
Non-bonding molecular orbital, it occurs when some opposite phase overlapping takes place simultaneously. ठीक है, its energy is equal to energy of individual atomic orbital. मतलब इसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा तो इसका बॉन्डिंग नहीं होगा. नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दिस, नो बॉन्ड. ठीक है, सपोज हम लोग एस और पी को ऐसे मिक्स कर रहे हैं, एस इस तरफ से जा रहा है पी के साथ, तो ये मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद ऐसे हो जाएगा. तो ऐसे हो गया तो प्लस प्लस में अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे हो गया अट्रैक्शन. ये प्लस माइनस हो गया रिपल्सन, यहाँ पे हो गया रिपल्सन. यहाँ अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे रिपल्सन हो गया, तो बैलेंस हो गया. अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल टू 0. तो प्लस प्लस ओवरलैप कैंसिल बाय प्लस माइनस ओवरलैप. ठीक है, तो प्लस प्लस ओवरलैप प्लस माइनस ओवरलैप कैंसिल हो जाता है. तो कैंसिल होने से तो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्म. सही है, क्लियर है? हाँ सर. तो पी पी ओवरलैपिंग देखो कैसे होता है. पी देखो ऐसे आया, पी अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ तो बात है पाई बॉन्ड बनेगा. अगर ये ऐसा है और एक ऐसा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. अगर एक ऐसे जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक वर्टिकली है, तो इनका ओवरलैपिंग में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा. ओके, तो इनका ओवरलैपिंग में देखो ये ऐसे आया, प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, प्लस प्लस अट्रैक्शन हुआ, प्लस माइनस अट्रैक्शन हुआ, तो ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बनेगा. ठीक है, तो प्लस 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 माइनस कैंसिल हो जाएगा, नो बॉन्ड इज फॉर्म. और ये बताया अगर एक्सियल है हमारा, एक्सियल ऑर्बिटल मतलब dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² ऑन द एक्सिस रहेगा. ये जेड एक्सिस में रहेगा, ये एक्स और वाई एक्सिस में रहेगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर. तो dx² माइनस वाई स्क्वायर एक्सियल जो है वो अगर पी वाई या पी एक्स से ओवरलैप हो रहा है तो कैसे होगा, ये इधर आया तो ये ऐसे ओवरलैपिंग होगा. तो प्लस 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 जितना अट्रैक्शन है प्लस माइनस उतना रिपल्सन होगा. तो प्लस प्लस जितना अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस उतना रिपल्सन होगा, तो नेट ये कैंसिल हो जाएगा. तो कैंसिल हो गया तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? मतलब जो एक्सियल है वो पी के साथ पाई बॉन्ड नहीं करता है, जो इक्वेटोरियल है वो पी के साथ पाई बॉन्ड करता है. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता है. डीपी ओवरलैपिंग हम लोग करते हैं. सपोज डीपी ओवरलैपिंग जो मैंने बताया वही क्या है, देखो dx² माइनस वाई स्क्वायर पी वाई, इसको ओवरलैपिंग किया. अगर ये इस तरफ आ गया तो ये देखो, तो जितना प्लस प्लस ओवरलैपिंग प्लस माइनस ओवरलैपिंग कैंसिल हो गया, तो नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो एक्सियल वाला डी कभी बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं करता है. एक्सियल वाला डी ऑर्बिटल पी के साथ पाई बॉन्ड नहीं करता है, नॉन एक्सियल वाला पाई बॉन्ड करता है. बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है. हाँ तो इसमें तो किसी में भी बॉन्ड फॉर्म हो ही नहीं रहा है. हाँ, ये तो नॉन बॉन्डिंग है ना. अगर दोनों एक्सियल है या दोनों वर्टिकल है तो पाई बॉन्ड बनेगा वर्टिकल में, और हेड ऑन होगा तो एक्सियल होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. एक एक्सियल एक पी ऑर्बिटल है वो नहीं बॉन्ड फॉर्म करेगा. एस डी में भी नहीं करेगा. एस ऐसे जा रहा है, पी ऐसा है, तो इधर जब जाएगा तो प्लस प्लस जो अट्रैक्शन है प्लस माइनस रिपल्सन होगा. तो प्लस प्लस अट्रैक्शन प्लस माइनस रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर.
यस सर। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहा तो उसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो नॉर्मली एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या लिखते हैं हम लोग, 1s2 2 px 2 py 2 pz 3s 3 px 3 py 3 pz 4s ऐसे करके 3d करके लिखते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz ये सब आ रहा है। तो ये जो आ रहा है उसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो इसका एनर्जी ऑर्डर एबोव प्रिंसिपल से आएगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर के लिए एक डायग्राम ले लेंगे, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मैं वाइट पेज में चलता हूँ, उसमें ठीक से समझ में आएगा। सर ये सारा तो आपने दे दिया है ना ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में। हाँ जी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में हम लोग ले लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है तो हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का करते हैं। तो ये जो काम करेंगे उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, ये हम कर रहे हैं। तो इस तरफ से क्या ले रहे हैं, ये जो ले रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, हो गया। अब ऑक्सीजन का 1s2, ऑक्सीजन का है 1s2, तो इधर भी 1s2 होगा। एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का 1s2 होगा। और क्या है, 2s2 है एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2। तो इधर क्या है, 2s2, ये 1s2, ये 2s2। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, पी का था 2px2 2py1 2pz1 यही था। इधर भी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऐसे कर लिए। अभी हम लोग देखते हैं इसका 1s2 जब मिक्स होगा, मिक्स होने से दोनों ऑर्बिटल देगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम लोग पढ़े थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर से कम होता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो होगा सम ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से कम होगा। तो ये नीचे लिखना है इसको।
अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, उसका एनर्जी सम ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से ज़्यादा होगा, तो इसको ऊपर लिखना है। और 2s का क्या है, 2s का इसका एनर्जी ऐसा, और 2s2 तो मतलब 2s कंबाइन होगा तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, सिग्मा 2s लिखेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब क्या है, अगर 2px 2py 2pz ये मिक्स होगा, इसमें भी है 2px 2py 2pz, तो ये दोनों मिक्सिंग होने से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ये जो है वो भी ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन दोनों मिक्स होने से जो नीचे आएगा वो एक होगा सिग्मा, एक सिग्मा होगा तो 2 पाई होगा, क्योंकि ये पढ़े हो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन में अगर एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा 2px, तो y और z पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसको लिखेंगे पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, ठीक है। तो ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये दोनों मिक्स हो गए। अब ये दोनों मिक्स होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर भी बनाएगा। तो ये अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, उसको यहाँ पे लिखना है ये। तो ये बॉन्डिंग में पाई 2py 2pz है, एंटी बॉन्डिंग में पाई 2py स्टार पाई 2pz स्टार। और इसके बाद अगर सिग्मा 2px है तो एंटी बॉन्डिंग में होगा सिग्मा 2px स्टार, ओके। सिग्मा 2px है तो एंटी बॉन्डिंग में होगा सिग्मा 2px स्टार, क्लियर। तो डायग्राम ड्रॉ कर लिए सब लोग, हैव यू ड्रॉन द डायग्राम? सर हाँ सर। अभी क्या है 1s ओवरलैप होगा, अभी 1s ओवरलैप होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 हो गया। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो हमेशा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों साथ साथ बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप करेंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें भी 2 हो सकता है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग फिलअप कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे 2 फिलअप कर दो, यहाँ पे 2 फिलअप कर दो, हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे फिलअप कर दो और 2 यहाँ पे फिलअप कर दो, ये हो गया। अभी इसमें आते हैं, तो इसमें जो आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 2 2 4 4, इसमें 4 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होगा, पहले यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो गया और 6 बचा, 6 में से इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, तो 2 2 4 2 6 हो गया और 2 बच गया, और एक इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है। सही है। सॉरी कोई बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन ये 1s का समझ में आ गया, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 4 हो, इसमें भी 2 2 4 है, इसमें 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो, ओके, ये हो गया। अब इसमें आता है ये
2p का इलेक्ट्रॉन आता है। 2p में तो अगर एक्स एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वाई जेड पाई बनाएगा, तो सिग्मा 2px हो गया, पाई 2py 2pz हो गया। और ऐसे ही अगर पाई स्टार बनता है, पाई 2py स्टार इज इक्वल टू पाई 2pz स्टार, तो पाई 2py स्टार इज इक्वल टू पाई 2pz स्टार, और उसके बाद सिग्मा 2px स्टार। तो इसके बाद आता है सिग्मा 2px स्टार। ओके, तो सिग्मा 2px स्टार है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, 4 4 8 है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी फिलअप होगा। ये आपको प्रिंसिपल फॉलो करेगा, होन्स रूल फॉलो करेगा, और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4 2 6 हो गया, और 2 बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों ही ऑन पैड रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू होन्स रूल सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल में सेम ऑन पैड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑन पैड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 एक में 0 नहीं कर सकते, क्योंकि होन्स रूल वायलेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फिलअप ऐसे होगा, यहाँ पे ऑन पैड, यहाँ पे ऑन पैड। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, यहाँ से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा 1s आया, फिर सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s आ रहा, फिर सिग्मा 2s स्टार, तो उसके बाद सिग्मा 2px, सिग्मा 2px आ रहा, फिर आ रहा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, उसके बाद आ रहा है पाई 2py स्टार इज इक्वल टू पाई 2pz स्टार, और लास्ट में आ रहा सिग्मा 2px स्टार। इज दैट क्लियर? अब ये O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो O2 का सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s स्टार में 2 है, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा पाई 2py 2pz में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2py स्टार 2pz स्टार में 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 देखते हैं कितना होगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या होगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है, ये वाला बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये सब बॉन्डिंग है, बाकी सब एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4, यहाँ पे 2 6 6, तो कितना आ रहा, 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सही है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। हैव यू रिटन दिस पेज?
यस सर। सर वेट। यस सर। नेक्स्ट, तो ये हम देखते हैं हम क्या पाए, सिग्मा 1s पाए, फिर सिग्मा 1s स्टार पाए, फिर सिग्मा 2s पाए, सिग्मा 2s स्टार मिला, फिर सिग्मा 2px मिला, फिर सिग्मा 2py इज इक्वल सॉरी पाई 2py, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, फिर मिला पाई 2py स्टार इज इक्वल टू पाई 2pz स्टार, फिर मिला सिग्मा 2px स्टार। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, O2 का कॉन्फ़िगरेशन, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 16 है, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 10 12, तो ये हो गया 16। एक काम करते हैं, O2 प्लस लेते हैं, O2 प्लस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टोटल? O2 प्लस 14। हाँ 15 सर 15 हाँ 15 हो, 15। एक कम हो गया, वो बाहर से जाएगा, तो जो एक कम हो गया बाहर से एक कम कर देते हैं। अब मान लो O2 2 प्लस कर देते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। O2 2 प्लस में देखते हैं क्या आएगा, तो और एक कम हो जाएगा, ऊपर से और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा। और एक काम करते हैं, नहीं O2 माइनस करते हैं और O2 2 माइनस करते हैं। O2 माइनस में इसमें 16 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा O2 माइनस, O2 2 माइनस में इसमें से 16 था और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। O2 माइनस में 17 हुआ, तो एक ऐड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें दो एक हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। और O2 2 माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन O2 से ऐड हो जाएगा, O2 से दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, तो ये क्या होगा। अब बोलो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा इस सब का, देखते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो फर्स्ट वाला इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का होता है। पैरामैग्नेटिक होता है कि नहीं? हाँ सर पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये क्या पैरामैग्नेटिक होगा O2 2 प्लस, बोलो। नहीं सर डायमैग्नेटिक नहीं होगा। सर, डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक, ये भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। और ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, लास्ट वन। सर डायमैग्नेटिक। 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 तो ये सब यही हो रहा। तो जब हमें एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट में इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर इसके साथ एग्जैक्टली
मैच किया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सही है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। सर हाँ सर अब बोलिए, आपकी आवाज कनेक्ट करेगी। हाँ बोलो। सर आपने क्लास क्या में बोले क्या कि बोले? एक्सपेरिमेंट किए और हाँ, मैच किया? एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक कैरेक्टर मैच कर रहा है इसके साथ, तो इसके साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर मैच कर रहा है, मतलब जो थ्योरी हम बताए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सही है। ओके, थ्योरी तो इमेजिनेशन है ना। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को प्रूव करने के लिए हम कुछ लॉजिकल अजम्पशन लेते हैं और कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी सही होगा तभी तो सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मैच कर रहा है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का देखे थे, अभी दूसरे का देखते हैं। ओके, देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग O2 प्लस देखते हैं कितना आएगा। O2 प्लस में एक एंटी बॉन्डिंग से माइनस हो गया, तो 10 - 6 था, तो 10 - 5 होगा। कितना होगा O2 प्लस? 2.5। 2.5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, O2 2 प्लस का देखते हैं। O2 2 प्लस का कितना आएगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, 2 प्लस कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग में 2 माइनस हो गया, तो 10 - 4 हो गया, 3.0 हो गया। ओके, अब एक काम करते हैं, O2 माइनस का देखते हैं और O2 2 माइनस का देखते हैं। O2 माइनस में क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, O2 के कंपेरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया मतलब एक बढ़ गया, तो पहले था 6, एक बढ़ गया तो 7 हो गया। O2 में 6 था ना, 10 - 6/2। बॉन्ड ऑर्डर O2 लास्ट में दिखाए थे ना। ऐसे था ना। अब 6 में से एक बढ़ जाएगा O2 माइनस, मतलब तो उसके साथ एक ऐड हो जाएगा, 6 + 1 7, तो ये हो गया 1.5। O2 2 माइनस हो गया हाफ इंटू 10 इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 1.8। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस थ्योरी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आने से क्या हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। ऐसा क्यों? देखो, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड करेगा एटम को 2 पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा नंबर बॉन्ड से काम चलेगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनेगा। 2 पाई बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूल क्या होगा, क्लोज आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्लोज आ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो इसलिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या लिखोगे बोलो? स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा among the following? Which ion is the most stable? Tell me. सर O2 O2 2 प्लस। प्लस, Yes, O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो फिर उसके बाद O2 प्लस होगा, हाँ उसके O2 बाद माइनस और O2 2 माइनस। O2 प्लस फिर O2 2 माइनस।
ठीक है, समझ में आ गया ये स्टेबिलिटी। और अगर पूछेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ, तो क्या होगा? So O2 2 minus O2 minus O2 O2 plus O2 2 plus. यस, O2 2 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 प्लस ग्रेटर देन O2 2 प्लस, ये होगा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, मतलब इस थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, रिलेटिव स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, ये सब बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को वेव जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया? तो हैव यू रिटन? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो अभी क्या करते हैं, फिर अटैचमेंट में चलते हैं। तो ये क्या बोला है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू 16 होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल टू 16 हो गया, मोर देन 16 हो गया, तो अभी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे वो सही है, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2 स्टार, फिर सिग्मा 2px, उसके बाद पाई 2py 2pz, फिर पाई 2py स्टार 2pz स्टार, उसके बाद सिग्मा 2px स्टार, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 16 हो गया, मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब कैटेगरी हो गया, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, सब सेम रहेगा, खाली ये दोनों इंटरचेंज होंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 2 स्टार, यहाँ पे पाई आगे आ जाएगा। पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz लेस देन सिग्मा 2px होगा, लेस देन पाई 2py स्टार एंड 2pz स्टार, तो ये है लेस देन सिग्मा 2px स्टार। ठीक है, इज इट क्लियर? सर थोड़ा रुकिए। खाली ये दोनों चेंज होगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 से कम हो गया ये चेंज होगा, बाकी सब में ऊपर में जो है ऐसे ही रहेगा। तो चेंज क्यों हो जाता है सर? हाँ, चेंज, ये जो डाटा आया, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से आया है, एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एक्सपेरिमेंट है, उससे ये सब डाटा आया, लेकिन क्यों होता है इसको थ्योरी से उसको समझाने की कोशिश किए, तो बाद में पता चला कि जो नीचे ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उसका क्या होता है, 2s और 2p का एनर्जी नियरली सेम होता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के ज़्यादा होता है उसके में 2s का एनर्जी 2p से कम होता है। इसमें नियरली सेम होने से इसमें sp मिक्सिंग होता है, s और p का मिक्सिंग होता है। s और p का जब मिक्सिंग होगा तो मिक्सिंग होने से पाई का एनर्जी कम हो जाएगा और सिग्मा का एनर्जी बढ़ जाता है, तो मिक्सिंग होने से सिग्मा का जो एनर्जी है पाई से ज़्यादा होता है। इसमें नो मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, नियरली सेम एनर्जी का मिक्सिंग होता है। इफ एनर्जी डिफरेंस इज लार्ज तो इसमें मिक्सिंग नहीं होगा, बोल रहा है, इसमें मिक्सिंग नहीं होगा तो सिग्मा का एनर्जी पाई से कम होगा, अगर मिक्सिंग होगा तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो ऐसे करके एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, इसको याद रखना है, बस अप्लाई करना है। ओके सर। ओके सर। तो
कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों इंटरचेंज होगा जब नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन ये सब आएगा। अदरवाइज बाकी सब में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फ्लोरीन ले लिए, जो हायर एटॉमिक नंबर में, ये सब कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक डाउट है, क्लियर कर लोगे? मेरा डाउट है कि हम लोग जो लिए O2 लिए, कितना इलेक्ट्रॉन था? 16 था। O2 2 प्लस लेने से कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14। 14 तो 14 होगा, मतलब ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 से कम हो गया। तो ये पार्ट 1 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि पार्ट 2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? O2 2 प्लस में पार्ट 1 का ही करेंगे। क्यों? ये तो 1 का ही कर 16 से तो कम हो गया, 16 से कम हो गया, पार्ट 1 का क्यों करेंगे? हम लोग लिखे टोटल इलेक्ट्रॉन 16 से कम होने से पार्ट 2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्यों नहीं होगा? देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 था, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इसका एनर्जी लेवल में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। एनर्जी लेवल जैसा है ऐसा ही रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस होने से एनर्जी लेवल में चेंज नहीं आएगा। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन लेना है, ये न्यूट्रल स्पीसीज करके लेना है, याद रखो। ये आयनिक स्पीसीज करके नहीं लेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज करके लेंगे। ठीक है, मतलब न्यूट्रल कोई स्पीसीज का न्यूट्रल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है वो देख के हम लोग 1 या 2 का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बात की बात है। और एक बात है, अगर N2 हम ले लिए, अगर N2 ले लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, अब N2 2 माइनस करेंगे तो 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर N2 2 माइनस से 16 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 16 इलेक्ट्रॉन होने से N2 2 माइनस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 16 हो जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होने से N2 का 14 है, लेकिन N2 2 माइनस का N2 का 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 2 माइनस का 16 इलेक्ट्रॉन है। N2 2 माइनस का 16 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 2 माइनस का जब 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन लेगा? N2 14 है, 14 इसका आ रहा है, N2 2 माइनस इसका आ रहा है, तो 2 लेगा कि 1 लेगा? N2 2 माइनस तो 2 लेगा। 2 लेगा, यस, वेरी गुड। 2 हम लोग जो न्यूट्रल में जो आ रहा है वही लेना है, और आयन का बाद में देखना है, न्यूट्रल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही करना है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर, तो मैंने समझा दिया। और एक बात है, जो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल है, कम होगा तो कम स्टेबल है। एक मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई दो डिफरेंट स्पीसीज का है, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, वो वैलिड नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो N2 प्लस N2 माइनस, सेम स्पीसीज का बीच में इलेक्ट्रॉन चेंज होने से देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर NO का 2.5 है और O2 का 2 है, तो NO ज़्यादा स्टेबल होगा, NO शुड बी मोर स्टेबल देन O2। नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। Bond order comparison we can do between same species with different number of electrons, but bond order we should not do with two different species. Okay, तो bond order comparison उससे नहीं होगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे NO is more stable, NO is more stable than O2, लेकिन देखा गया NO O2 से कम स्टेबल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, कम स्टेबल है, मतलब ये नियम गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट स्पीसीज में कंपैरिजन, डिफरेंट स्पीसीज का कंपैरिजन वैलिड नहीं है। तो species is unstable is present from will try to convert itself into more stable. Bond energy is more of NO than O2. Even though bond order is 2.5, because bond order is fraction, so it will be less stable and all. तो ये क्या बोल रहा है? बॉन्ड ऑर्डर इसका फ्रैक्शन है, इसीलिए कम स्टेबल होगा।
It means it will be unstable with respect to most stable form of S. तो अगर हम NO प्लस करेंगे, NO करेंगे, NO प्लस करेंगे तो इसका 2.5 आ रहा, इसका 2 आ रहा, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सेम स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जा सकता है, डिफरेंट स्पीसीज में नहीं किया जा सकता है। मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी लेस द बॉन्ड लेंथ, ये तो मैंने बता दिया ना। एंड मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी बॉन्ड डिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, O2 का 2 है, तो हम क्या बोलेंगे? NO इज मोर स्टेबल देन O2, बट क्या है? NO इज लेस स्टेबल देन O2. NO is unstable with respect to NO plus not O2. So bond or see NO may be more or less stable than O2. We don't know. By bond order ये दोनों different species का comparison हम लोग कर नहीं सकते। समझ में आ रहा? सेम स्पीसीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, अभी करना है। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये जेई में आ चुका है। सपोज क्या करना है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नाइट्रोजन ऐसे आएगा, 1s आएगा पहले, फिर सिग्मा 2s आएगा, सॉरी 1s स्टार आएगा, फिर सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s स्टार आएगा, फिर आएगा सिग्मा 2px, फिर आएगा। नाइट्रोजन में उल्टा हो जाता है ना, इसमें आएगा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, फिर सिग्मा 2px आएगा, फिर आता है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz स्टार आता है, इसके बाद सिग्मा 2px स्टार आता है। सही है, समझ में आ गया? आर यू देयर? हाँ सर, समझ में आया। तो नाइट्रोजन का Yes, ये sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें sp मिक्सिंग की वजह से सिग्मा का एनर्जी बढ़ जाता है, तो सिग्मा का एनर्जी यहाँ रहता है, तो यहाँ आ गया, बस इतना याद रखो। तो नाइट्रोजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7 7 14 हो रहा, तो इसका कैसे लिखेंगे? 14 है तो 2 4 6 8 10 12 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो कि N2 प्लस करेंगे, N2 माइनस करेंगे, N2 2 माइनस करेंगे। ठीक है, N2 प्लस करने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। कहाँ से कम होगा? बाहर से कम होगा, तो बाहर से एक कम कर दो, हो गया, फिनिश। N2 माइनस मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बाहर से। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ आ गया। और N2 2 माइनस मतलब और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये एक था, और एक N2 माइनस 2 माइनस मतलब N माइनस से और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये कहाँ रहेगा? वो 2 होगा, तो यहाँ एक, यहाँ एक। हूंसुल वायलेट नहीं करेगा ना, हूंसुल के हिसाब से दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा ना, तो ये हुंस रूल फॉलो करेगा, अपर रूल करेगा, फॉलो करेगा, पॉली सेक्टिज्म प्रिंसिपल फॉलो करेगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हो गया। तो अभी मेरे को ये बताना है कि पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। बॉन्ड ऑर्डर किसका? N2 का करो, फिर किसका? N2 प्लस करो, फिर किसका? N2 माइनस करो, फिर N2 2 माइनस करो, और मेरे को रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। रिलेटिव स्टेबिलिटी, और मेरे को बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर।
बॉन्ड लेंथ, तो ये अभी कर लो, ये कर लो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ये कर लो। आया क्या आंसर? हाँ Yes, सर शायद आ गया। सर n2 ग्रेटर देन n2 प्लस और n2 माइनस उससे इक्वल होगा और वो ग्रेटर देन n2 हाँ। 2 माइनस होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? वो स्टेबिलिटी N2 का हाँ, 1/2, N2 का कितना है? इनका 10, 10 माइनस 10-4 तो ये हो गया 3, N2 का 3 हो गया। अब N2 प्लस का देखते हैं 1/2, ओके। 10 minus 5. 10 माइनस प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कहाँ से कम हो गया? या बॉन्डिंग से कम होगा, बॉन्डिंग से। तो ये 9 हो तो जाएगा। सर 9-4 होगा। 9 माइनस 9-4 4 5/2 2.5। N2 माइनस क्या होगा? N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, किसमें? एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो गया। बॉन्डिंग सेम है, एंटी बॉन्डिंग ऐड हो गया। तो बॉन्डिंग सेम है, एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो गया, तो ये भी 2.5 आ रहा है। अरे ये दोनों सेम हो रहा है। ओके, इसका देखते हैं। हाफ इंटू N2 2 माइनस क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो गया। तो 10 माइनस इसका जितना था और एक ऐड हो गया 6। 10 माइनस 6 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है N2 ग्रेटर देन N2 प्लस इज इक्वल टू N2 माइनस ग्रेटर देन N2 2 माइनस। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल, हाईएस्ट स्टेबल होगा N2, दैट इज ऑब्वियस। उसके बाद ये दोनों होंगे, लेकिन ये दोनों का स्टेबिलिटी क्या सेम होगा? लास्ट तो होगा ये क्लियर है, लास्ट से। लेकिन ये N2 प्लस N2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, मतलब सेम स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बोलो। मे भी हो सकता है कुछ और फैक्टर। सेम स्टेबल नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल डजंट मीन दैट इक्वली स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल होगा तब देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
number of electrons in anti-bonding orbital. Number of electrons in anti-bonding orbitals. तो देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये दोनों में, इसका एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका N2 प्लस का एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस का एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो किसका एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? N2 माइनस का। N2 माइनस का। जिसका एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कम स्टेबल होगा। If bond order same, then number of electrons lesser in the species is more stable. So number of electron in anti-bonding, if it is less, then it is more stable. तो किसका लेस है? N2 प्लस की N2 माइनस? सर N2 माइनस का कम स्टेबिलिटी है। N2 माइनस का कम स्टेबिलिटी यस है। यस, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ ठीक उल्टा होगा। बॉन्ड लेंथ ठीक इसका उल्टा होगा। देखो सर बॉन्ड लेंथ भी तो बॉन्ड लेंथ इसका ऐसे दिखेगा। ये देखो माइनस जो है रिपेल करेगा ना, अगर माइनस चार्ज आ गया रिपेल करेगा। इसमें 2 माइनस आ गया और ज़्यादा रिपेल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा ना, इसका थोड़ा रिपेल करेगा, इसका और कम रिपेल, ये तो करेगा। ठीक है, सही है, हो गया। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन था वाई He2 इज नॉट पॉसिबल। बट He2 प्लस एग्जिस्ट। देखते हैं He का। एटॉमिक ऑर्बिटल, हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s2 होता है, इसमें 1s2 होता है। हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप होगा तो क्या होगा, बोलो? सिग्मा 1s, दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ गया, फिर सिग्मा 1s स्टार, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इट क्लियर? हाँ सर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलो? कितना होगा? सर 0। 2 - 2 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 तो डज नॉट एग्जिस्ट, से डज नॉट एग्जिस्ट, नेचर में ये नहीं मिलेगा, पाया नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहले तो ये बनेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, ये एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? इसका मूडी करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो ये हीलियम ले लो, यहाँ पे हीलियम प्लस ले लो, हीलियम 2 प्लस है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा?
एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका MOD बना लो। तो 2 1 3 हो गया। तो इसमें सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा 1s स्टार बनेगा। 2 1 3 हो गया। 3 में इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 0.5 Ag2 प्लस, तो 1/2 into 2 minus 1 is equal to 0.5. Bond order 0.5 means it exists. Maybe less stable, but it exists. हीलियम वेपर लैंप है, जैसे नियॉन वेपर लैंप, आर्गन वेपर लैंप, जेनॉन वेपर लैंप होता है ना, ठीक है, ऐसे ही हमारा हाँ सर। हीलियम का भी वेपर लैंप है। तो उसमें हीलियम 2 प्लस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0.5 आ रहा है, तो इट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है सबके लिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जेई में स्कूल में आया था। मतलब पहले क्या होता था, 11th क्लास का सिलेबस आता था और कुछ साल के बाद 11th डिलीट कर दिया, अभी 12th क्लास का सिलेबस CBSE बोर्ड में आता है। तो ये क्वेश्चन था, हीलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस है, तो इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर is relative stability order. Tell me. सर हाँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट। इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी स्टेबिलिटी कम ना। हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था लाइन। ठीक है, तो बताओ। तो कोई फोन कॉल आया और डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने रिसीव नहीं किया, फिर भी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा हाँ सर, H2 फिर H2 माइनस फिर H2 प्लस। हाँ सर, H2 माइनस H2 माइनस H2 प्लस। देखते हैं, तो H2 माइनस इज द मोस्ट स्टेबल, फिर H2 प्लस है। देखते हैं, ठीक सही होगा शायद। सिग्मा 1s कर दो, सिग्मा 1s स्टार कर दो, सिग्मा 2s कर दो, फिर सिग्मा 2s स्टार कर दो। तो तुम तो जरूरत ही इतना नहीं है। जरूरत नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर। इसमें 1 + 0 1 है, इसमें 1 + 2 3। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बाकी 0 0 हो गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसके 3 है, 2 और 1। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसका क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ इंटू 2 - 0 होगा। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 2 - 0, तो कितना होगा? 1। 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका बॉन्डिंग में 1 ही है, -0, तो कितना होगा? 1/2। इसका देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये होगा हाफ इंटू, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1,
कितना हो गया, ये भी हाफ हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा, क्योंकि H2 H2 ज़्यादा स्टेबल है, H2 बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। अब ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, टाई हो गया। अगर टाई हो जाता है मैच तो हम लोग क्या करते हैं, बिना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर। तो हम लोग देखते हैं पेनाल्टी शूट आउट। पेनाल्टी शूट आउट भी सेम हो गया, ठीक है, मतलब सुपर ओवर भी रन सेम हो गया। तो क्या करेंगे, फिर देखेंगे एंटी बॉन्डिंग में किसका इलेक्ट्रॉन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ जिसका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा वो कम स्टेबल होगा। तो सेकंड स्टेबल कौन होगा, H2 plus. प्लस बस and then H2 माइनस। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। ओके, अभी हम अटैचमेंट में जाते हैं। ओके, अटैचमेंट में जाते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने बताया, ये हो गया। N2 का ये सब बना लिए। देखो बॉन्ड ऑर्डर विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। हाँ, रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल का जो होगा उससे आएगा। ये सब हो गया, ये मैंने करा दिया। तो अभी अभी करा है ना, हाँ सर। ये सब हो गया। O2 भी हो गया। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और ये नहीं है हमारे सिलेबस में। हेटेरोन्यूक्लियर स्पीसीज नहीं है, होमोन्यूक्लियर स्पीसीज है। होमोन्यूक्लियर स्पीसीज है, हेटेरोन्यूक्लियर स्पीसीज नहीं है। लेकिन अगर आता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके उसके हिसाब से वो जो ऑर्डर 1 होगा या ऑर्डर 2 होगा उसके हिसाब से करो, ठीक है। और एनर्जी लेवल डायग्राम तो मैंने बता दिया अभी अभी। एनर्जी लेवल डायग्राम तो हो गया, N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया कंप्लीट। NO का एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं, एक दो हेटेरोन्यूक्लियर स्पीसीज देख लेते हैं। लेकिन याद रखो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लो एक्स्ट्रा, 10% तो पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, नहीं पढ़ने से अच्छा होगा। तो NO अगर ले रहे हैं, NO का जो क्या होगा, N का क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका 8 8 15 होगा। 15 के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे N और O, NO का सेम एनर्जी नहीं होगा, याद रखो। N और O का जो एनर्जी होगा वो एनर्जी O का कम होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका एनर्जी कम रखो, जो ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका एनर्जी थोड़ा ऊपर रखो। तो 1s से ये खत्म हो गया, 1s तो खत्म हो गया, इसको के लिख देते हैं, के लिखने से हो गया। अब 2s वैलेंसी सेल का देखते हैं। इनर सेल का तो कैंसिल हो जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों आएगा, तो के लिख दिए इसको, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग स्टार 1s और 1s। तो 2s का कैसे होगा, तो 2s का ऐसे होगा, 2s का है सिग्मा 2s होगा, स्टार नहीं है, ये एक गलत लिख गया। सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s स्टार आएगा, हो गया। अब ये याद रखो, इसका एनर्जी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हेटेरोन्यूक्लियर है। हेटेरोन्यूक्लियर में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर यहाँ लिखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे, उसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो हम लोग पढ़े थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच लेता है तो उसके पास है, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे दूर है। देखो इससे दूर है कि नहीं, इससे दूर है, और ये इसके पास है, सही है। तो ऐसे ही दिखाना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंटी बॉन्डिंग के पास होगा, ये एंटी बॉन्डिंग से दूर होगा। जैसे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये हो गया। अब देखो हमारा नाइट्रोजन में 2px1 2py1 2pz1 हो गया, और ऑक्सीजन में 2px2 2py1 2pz1। तो इसमें 3 और ये 4 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन होने से पहले सिग्मा 2px फिलअप होता है,
उसके बाद ये फिलअप होता है पाई, उसके बाद पाई स्टार फिलअप होता है। तो हमारा कितना है, 3 4 3 7 हो गया। तो इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 6 फिलअप हो गया और 1 बच गया। जो 1 बच गया यहाँ पे आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये गया। तो इसमें हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ इंटू, इधर के में 2 हो गया बॉन्डिंग का, 2s में 2 हो गया, 2 2 4, 4 2 6 2 8 2 10, इसमें 10 हो गया माइनस। एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन के स्टार में एक होगा, एंटी बॉन्डिंग 2 2 2, फिर ये हो गया 2 2 4 हो गया, 4 ये सब एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें 5 हो गया, 10 माइनस 5 कितना आ गया, 2.5। NO का 2.5 आता है। अब मान लो NO प्लस कर दिए, NO प्लस का कितना होगा, हाफ इंटू 10 माइनस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दो, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दिए, यहाँ से एंटी बॉन्डिंग से कम हो गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? NO प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो एंटी बॉन्डिंग से जो हायर एनर्जी है उससे लॉस होगा, एक लॉस हो गया, एक कम कर दो एंटी बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग 5 था, कम कर दो 4 हो गया, तो क्या होगा, 10 माइनस 4 6/2 3 होगा। तो मतलब NO प्लस NO से ज़्यादा स्टेबल है, NO प्लस इज मोर स्टेबल देन NO। ठीक है, तो ऐसे करके हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, इधर बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, 2.5 हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, वो ही बोल रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है NO प्लस का, ये NO प्लस का, ये NO का ले लो, NO का 2.5 है, बॉन्ड लेंथ कितना है 1.818 एंगस्ट्रॉम, 3 हो गया 1.11 आ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया। सही है कि नहीं, क्या बोलो? हाँ सर। हाँ सर। और ये CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिया है। CO का कार्बन का कितना है 6, इसका कितना है 8, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन N2 का कन्फिग्रेशन दिखाएगा, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नीचे दिखाना है, यहाँ पे बॉन्डिंग के पास दिखाना है ऐसे। ठीक है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऊपर दिखाना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे नीचे दिखाना है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, बीच में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया ये बना लो उसके हिसाब से। और इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखे तो 3 आ गया CO का, CO प्लस का देखे, CO प्लस का 2.5 आ गया। CO में देखे हमारा ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया, यहाँ से, तो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक्सपेरिमेंट से देखे ये डायमैग्नेटिक सही है, ये पैरामैग्नेटिक भी सही है। ठीक है, ये खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हो गया क्लियर कि नहीं, इज इट क्लियर? इज इट ओके? तो नेक्स्ट बच गया, यस सर। नेक्स्ट बच गया ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा सा एडवांस न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उसको अपना घर में जो भी किताब है, मान लो मॉडर्न अप्रोच टू एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, नहीं तो कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, नहीं तो दिनेश पब्लिकेशन, नहीं तो प्रदीप पब्लिकेशन, जो भी किताब है उसको अच्छा से पढ़ लो एक बार। ओके, और उसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बनाओ, राइट, और क्वेश्चंस में भेज दूंगा करने के लिए।
इस चैप्टर का। और अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग का, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे डिस्कवर हुआ। पहले मैं स्टार्ट नहीं करूँगा बुक में जैसे दिया है, बुक में ये ग्राफ से स्टार्ट करो। ओके, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो। ये ग्राफ क्या है, हम लोग पढ़े थे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास, पढ़े थे कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास, पढ़े थे कि नहीं, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो इतना मॉलिक्यूलर मास है तो सरफेस एरिया इतना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास हम बढ़ा दिए ऐसे कर तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसको बॉयल करना है, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग करना है। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इसको हम अलग कर सकते हैं। अगर धागा है, कम अमाउंट ऑफ धागा है, मतलब सपोज 1 मीटर का धागा ऐसे उलझ गया तो उसको हम उसका गांठ, उसका जो नॉट है, नॉट को खोल के उसको हम स्ट्रेट आराम से कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं, बोलो। अगर मान लो 1 केजी का धागा, 1 केजी मतलब बहुत सारा धागा, तो उलझ गया है, वो सब इधर उधर हो गया, तो उसको क्या तुरंत अलग कर दोगे या बहुत टाइम लेगा अलग करने के लिए, बोलो। टाइम लेगा कि नहीं? तो इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, बोलो। आर यू देयर और नॉट? या सर म्यूट करा सर, हाँ आपका म्यूटेड है सर। हाँ, अभी मैं जाता हूँ उसमें, डिस्कनेक्ट हो गया है, क्या आज हो रहा है? तो आज का नेट का प्रॉब्लम है नहीं, बहुत। कोई फोन आया, नहीं आज तो फिर भी ठीक नहीं था। नहीं, फोन आया, कोई फोन किया। फोन को तो ऑफ नहीं कर सकते, मैं अभी फोन का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट फोन से आ रहा है। तो कोई कॉल कर दिया, वो फिर नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जब भी कॉल आता है डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं तो कॉल को बंद नहीं कर सकता, इंटरनेट चल रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम हो गया। हाँ, मैं बोल रहा था बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास से क्यों बढ़ता है। अब देखो 1 मीटर का धागा उलझ गया है, उसको सीधा कर सकते हो। एक एक 1000 मीटर का धागा है, वो उलझ गया, उसको सीधा कर लोगे, बोलो। तो नहीं सर। थोड़ा सा करके छोड़ दो, नहीं, बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा। थोड़ा करोगे फिर बोलोगे नहीं नहीं, ये करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा है केमिस्ट्री पढ़ लो, है कि नहीं? तो करोगे ही नहीं, इसको नहीं निकालोगे। तो अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो 1 मीटर धागा की तरह उलझ के रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उनके बीच में सरफेस एरिया बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको बॉयल करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है, ऐसे होता आया। देखो CH4 में देखो, CH4 SiH4, तो मोलर मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सही है। अब PH3 NH3 में देखो, तो ये NH3 का ज़्यादा है, NH3 तो मिनिमम होना चाहिए, उसका मोलर मास कम है, तो यहाँ पे रहना चाहिए। अब HF देखो, HF उसके बाद ऐसे हो रहा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा, तो ये देखो वाटर ज़्यादा है, मतलब वाटर, HF और एमोनिया, इस सब का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए उनका ग्रुप में, लेकिन ये मैक्सिमम हो गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि ये सब में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग है, एक न्यू टाइप का है।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, डिफरेंट है, बाकियों से डिफरेंट है। बाकियों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स, जो कि वीक होता है। लेकिन इसमें वान डेर वाल्स फोर्स नहीं होगा, इसमें एक नया टाइप का बॉन्डिंग होगा, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये नया टाइप का बॉन्डिंग है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। समझ में आए कि नहीं? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट यस सर। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है उसका डेफिनेशन पहला पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है, और तीसरा पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टाइप है हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशन होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और फोर्थ केस में पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ अप्लाइड है, मतलब इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो एप्लीकेशन से आएगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से